नमस्ते, वेलकम। आप देख रहे हैं लालन टॉप सिनेमा। आप देख रहे हो दी लालन टॉप। मेरा नाम है जीशा और आज मेरे साथ है राइमा सेन और अतुल मोंगिया। क्यों है यहाँ पर, क्या होने वाला है? वेल, नेटफ्लिक्स पर आ रही है एक सीरीज माई एंड ये है डायरेक्टर, को क्रिएटर एंड ऑफ कोर्स राइमा's एक्टिंग इन इट। सो लेट्स फाइंड आउट सम मोर। Welcome to our studios. Welcome to Lalan Top. Thank you. So I'm going to start with you, Raima. आप जो रोल प्ले कर रहे हो माई में नीलम का, तो what was the headspace of that character? कितने layers है, antagonist है, grey character है? Tell us about that. So I would say Neelam has a backstory. I mean, she's a sex worker, but that's not shown. This is her backstory, and then she comes across this man, Jawahar, and she's his right hand, and she learns the ropes, and she's a woman in control. She's the only woman in a man's world. And yeah, she's very strong. She doesn't stop at anything. She's also going through her own journey, but yet she doesn't show her emotions easily. There's only one character in the whole show that she's actually vulnerable with. But anything you want to add? No, you said it all. काफी ऐसे corporate space जैसा लगता है. Was that an inspiration? See, my inspiration is when he told me about the character. I thought this is something different. I have never played a character like this before with so many layers. It's a lot of gray shades. So I haven't done something like this. So the whole thing was very new to me. But for me, I don't take examples from movies or don't look at something like that. I just work with the director and the script. It's his vision, and so I rely on him firstly, and then of course the role. हाँ, जो आपने कॉर्पोरेट बोला उस पर आई वांट टू ऐड, हम लोग ने बहुत ही डेलिबरेटली ये डिसीजन लिया कि हम एक वाइट कॉलर क्राइम की कहानी कहेंगे, क्योंकि यूपी में हमारी कहानी यूपी में बेस्ड है, लखनऊ में बेस्ड है। तो जब भी आप यूपी की कहानियाँ बताते हैं तो वो शादियों में बुलेट चलती हैं, तो तो वो हमको वैसी कहानी नहीं बनानी थी। तो इसलिए भी उनका जो गेटअप है थोड़ा इस तरह का है, क्योंकि कहानी ज़्यादा वाइट कॉलर क्राइम के बारे में। No, आपने बताया कि it's all about the director and that's what I trust in. तो how did this role happen for you? ये cast कैसे हुए आप? That you have to ask him. I did a screen test. I think I did 2 screen tests for it. But it was very funny because I heard about Atul Mongia and I wanted to do his acting workshop anyway 3 years ago, and it didn't work out. So when I got a call for a screen test, which I normally don't do screen tests, I'm paranoid. I thought I am going to do this and give it my best shot, and then the rest it's up to him. काफ़ी प्रेशर हुआ होगा, मतलब एक्टिंग कोच एंड देन यू डू ऑल ऑफ दीज वर्कशॉप्स एंड देन यू आल्सो बीन अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो आपने क्या देखा? नहीं, राइमा को ऑब्वियसली बहुत सालों से काम कर रही है, मतलब मनोरमा 6 फीट अंडर से और उसके पहले से भी मैं वेरी अवेयर इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या काम किया। तो राइमा फिट करती थी रोल और हमने इनको अप्रोच किया एंड लाइक शी सेड शी वाज ग्रेशियस इनफ टू टेस्ट विद अस, and after the test we were very sure कि राइमा ही हमारी नीलम है। Then we did our workshops and everything. पर आपकी ब्रीफ क्या थी वो स्क्रीन टेस्ट के लिए? No, in the screen, I just had to enact a few scenes. But in screen test, they don't really give you the whole character sketch as such. You just have to do your scenes, and I was just given 2-3 scenes to do. It's been too long. Actually क्या हुआ ना, 3 यूजली क्या होता है जब हम प्रमोशन करते हैं या बात करते हैं तो 1 साल पहले हुई होती है वो चीज़। अभी क्या 3 वेव आ गए हैं, तो अब 3 साल पुरानी बातें याद करना बड़ा मुश्किल है। ओके, सो कमिंग बैक टू द सीरीज, तो ऐसे है कि ये सीरीज में बहुत सारी महिलाएं एट द कोर ऑफ इट ऑल, राइट? इट्स ऑल अबाउट एंड यू सेड इन प्रीवियस इंटरव्यूज की काफ़ी गर्ल बॉस जैसा भी रोल है यहाँ पे। तो आपका इनिशियल क्या था, when you're working with all of them and your equation with all of them and on set the camaraderie? So that's what we did, extensive workshops for this role, and then I met everybody I was supposed to shoot with, and we all I had to become familiar with all of them. We had to connect, and yes, she's the only woman in the manner, she controls situations, so it became like that towards the end. I was not only doing that on camera, I think even off camera I was bossing everyone around, so it just happened. ओके, एंड यूजली जब थ्रिलर्स की हम बात करते हैं और हम देखते हैं अ लॉट ऑफ इट इज़ यूजली मेल सेंट्रिक, राइट? बट यहाँ पे वर्किंग विद ऑल ऑफ दीज वुमेन गिव अस अ स्टोरी और एन एक्सपीरियंस सेट से,
I worked mainly with the बॉयज boys. Bossed around all We of will them. tell you. Always. स्टोरीज फ्रॉम द सेट. Like working with all these female and characters. being so women centric at the core of it. नो विमेन सेंट्रिक तो मेरे को एक्चुअली फीमेल कैरेक्टर्स की कहानियाँ ज़्यादा दिलचस्प, मतलब पर्सनली मेरे को ज़्यादा पसंद है देखना भी, और जब आप लिखते भी हो तो क्या है, आपके अंदर के जो मन से जो आप करना चाहते हो तो खुद ही एक फीमेल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग निकल के आ जाते हैं. तो लिखाई के समय भी मतलब हम लोग जब सारे, खैर आप तो सारे कैरेक्टर्स पर ही फोकस करते हो, पर आई थिंक फीमेल्स आर फार मोर इंटरेस्टिंग, विमेन आर मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई थिंक विमेन भी अभी एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही हैं, क्योंकि आदमियों की जितनी कहानी बोलनी थी अब तक वो बोली जा चुकी हैं, और विमेन खुद भी ट्रांजिशन कर रही हैं, उनकी कहानियाँ ज़्यादा बोली भी नहीं जाती. तो एज अ स्टोरी टेलर भी आपका मन करता है कि आप औरतों की कहानियों पे और फोकस करें. एटलीस्ट पर्सनली आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टेलिंग फीमेल स्टोरीज दैन मेल स्टोरीज. और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? You're working with साक्षी तनवर, who is टेलीविजन की सबसे फेवरेट बहू, सीमा पवा मैम, इतने साल का, इतने डेकेड्स का एक्सपीरियंस है. What was it like working with such? इट्स ग्रेट. आई मीन दे आर सच अकम्पलिश्ड एक्टर्स. तो आपको बस उनको कैरेक्टर की जर्नी और उन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा लेके जाना होता है. बाकी तो सब अच्छे एक्टर ही हैं, तो खुद ही कर लेते हैं. तो जहाँ अगर एक दो जगह उनको लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ी हेल्प कर देते हो. बट अदरवाइज एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, अकम्पलिश्ड एक्टर्स, गुड एक्टर्स, तो एज अ डायरेक्टर क्रिएटर तो इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क. Makes the job easier. Of course, definitely. They say, no, casting is half your job done. So you have to cast the right people. Okay. Coming back to you, 23 years in the industry, and now did not. That my intention wasn't. I know you're thinking I feel so old right now. नहीं, वो मेरा intention नहीं था. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतने साल बाद, what kind of roles excite you now? What is it that keeps you going? So I want to do something different, obviously out of the box. You always, as an actor, want to do something which you haven't really been doing. So something which, so it doesn't matter to me whether I have to be in the first frame and the last frame. I have to be throughout the whole thing. But it matters to me that whatever you do has to make some sort of an impact and something which is challenging. So then you are excited and motivated to do the role. ऐसे कुछ है, 2 इंडस्ट्रीज में आपने काम किया है, 2 हाँ. डेकेड से ज़्यादा. ऐसा क्या है that now would really get your attention? Someone has to come with a really challenging role. What else? I mean, like, I don't know. Okay. Also, आपकी कोई favorite thriller या you know a drama? So many I've seen of late. Yeah, these are the most tough questions. Yeah, really, na? Is it So thriller? many now. You can't like choose one. But off the top of your mind, अगर आपको किसी को बोला कि यार मैंने ये थ्रिलर देखी है and it's just been my favorite, मैंने जो भी देखी है इसमें से कोई एक या दो. I mean, Thriller. मैं पर्सनली विंस गिलिगन का बहुत बड़ा फैन हूँ, जिन्होंने ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल बनाया है. जिसकी फाइनल सीजन का जो डेट फाइनल सीजन आ रहा है जिनका, तो मेरे लिए आई एम वेरी वेरी मतलब ऑ स्ट्रक बाय दैट मैन. तो आपने कहा है यू नो कि आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इंस्पायर अ लॉट ऑफ व्हाट यू मेक. जैसे आपने अभी यूपी की बात की, आपने अपनी मॉम के बारे में भी बात की है. तो दिस इनेबल्स यू टू क्रिएट एंड राइट योर डायरेक्टोरियल वेंचर हियर. एडमायर हाउ मच ऑफ इट प्लेड इन हियर. आई थिंक जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा बोरो किया, क्योंकि मेरी मम्मी शाहजहाँपुर से हैं, जो काफ़ी छोटा शहर है बरेली के पास यूपी में. तो मेरी सारी गर्मियों की छुट्टियां वहाँ बीती हैं. तो मेरे सारे मामा वहाँ पर हैं, कज़न्स हैं, तो थोड़ा वो उस दुनिया की थोड़ी सी समझ है, क्योंकि आपने इतना समय बिताया, आपकी मम्मी भी वहाँ से हैं. तो आप जितना ज़्यादा अपने वेल से ड्रॉ करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करते हैं, उतनी सच्चाई आती है. तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी आया है. तो जैसे कि जब मैं ये कहानी हम जब लिख भी रहे थे, मैं और तमाल और अमिता, हम 3 राइटर, जब हम ये कहानी लिख भी रहे थे, तो हमारे मन में हमेशा ये था कि ये जो औरत है जिसकी हम कहानी लिख रहे हैं, ये आपको लगना चाहिए कि ये औरत मेरी माँ भी हो सकती है. और वो हमारे लिए हमेशा एट ऑल टाइम्स वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जब हम कहानी कह रहे थे. और वो मेरे लिए पर्सनली भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि जो माई का जो कैरेक्टर है, उनका नाम है शील चौधरी, जो मेरी अपनी मम्मी का नाम है. तो मैं उनका मेडन नेम बिफोर शी गॉट मैरिड. तो मैं भी ये चाहता था कि ये नाम अपनी माँ का नाम मैं अपने किरदार को दूं, ताकि जब मैं भी वो बना रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो मुझे हमेशा याद रहे कि आप किसकी कहानी बता रहे हो. आप बह के एक एक वो हीरोइन की कहानी बनाना मत शुरू कर दो. तो हमेशा से इस बात पे जब अंशे भी शूट कर रहे थे, डायरेक्टर हमारे,
सो जब हम सब लोग मिलके जब बना भी रहे थे तो हम लोग हमेशा इस बात को लेके बहुत कॉन्शियस थे कि उनको, जब रवि हमारे जो डीओपी हैं या मीनल हमारी प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, वीरा हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, सब लोग जब मिलके काम कर रहे थे तो सब इस बात को हमेशा सोच के कि इस तरह की कहानी बतानी है, कभी भी हीरो हीरोइन वाले जोन में नहीं जाना। एनी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या इंस्टेंस आप हमें बता सकते हो जो आपने अपनी लाइफ में देखी और फिर यहाँ पर आपने उसको जैसे डुप्लीकेट किया या वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर कुछ बनाया? एक चीज़ जो मैं बोलूँगा इसकी, जो माई की जो शो का जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऐसा है कि हमारी कहानी में 3 अलग अलग दुनिया एग्जिस्ट करती हैं। एक दुनिया एक बड़ी सिंपल सी फैमिली की है, एक दुनिया जो क्राइम की है, वाइट कॉलर क्राइम, और एक दुनिया कॉप्स की। तो ये जो 3 दुनिया हैं, ये तीनों इस शो में माई की वजह से मिल जाती हैं, शील चौक के कैरेक्टर की वजह से मिलती हैं, एंड यू नो दे क्रॉस पाथ्स। तो एक जो चीज़ जो अपनी लाइफ में मैंने हमेशा जो देखा भी है और जो मुझे एक्साइट भी करता है कि जो इंसान होते हैं वो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग द वर्स्ट ऑफ थिंग्स एंड द बेस्ट ऑफ थिंग्स। तो मतलब वर्स्ट और बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ना हमेशा आपको एक ही कमरे में कई बार मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है और ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन लाइफ का जो मुझे बहुत एक्साइट करता है। और जब भी मैं कहानियाँ लिखना चाहता हूँ, हर कहानी नहीं पर कुछ कहानियाँ जैसे माई जैसी कहानी है, वहाँ पे ये बड़े आराम से ये चीज़ आ जाती है। और यूपी में मैंने खासकर ये बात नोटिस करी है कि यूपी में इतने अच्छे सिंपल स्वीट लोग हैं और फिर वो बाहुबली कल्चर और गुंडागर्दी कल्चर भी उतना ही है। तो ये जो दोनों चीज़ें साथ में एक ही स्पेस में हैं, वो अगर आप एक कहानी में डाल दें और वो अगर जो अच्छे लोगों, यू नो द नाइसर पीपल, इफ दे वर टू क्रॉस पाथ्स विद दैट साइड, एंड दैट इज व्हाट माई इज अबाउट। Do you think it would be chaotic? Chaos ensues when these worlds kind of overlap? It is very chaotic. It's very chaotic for the characters and especially the person जिसको, मतलब जो माई का कैरेक्टर है शील का, वो इतनी सिंपल है कि उनको पता भी नहीं है कि लोग ऐसे हो सकते हैं। तो वो बड़ी उनकी एक्चुअली हर इग्नोरेंस इज हर फियरलेसनेस, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किस हद तक ये बात, अगर मैं कुछ किसी को जाके बोल दूँ तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, उनको पता भी नहीं है बात। तो ऐसी 1-2 चीज़ें करती हैं वो हमारी स्टोरी में और उनको फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी मिलता है आपको अगले एपिसोड में। तो वो धीरे धीरे वो भी समझ रही है कि मैं इतनी मुंहफट या इतनी फेयरलेस नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, मेरी फैमिली भी अफेक्ट हो सकती है। क्योंकि हम सबने सीखा एवरी एक्शन हैज़ इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो तो भुगतना पड़ता है। तो आपने एक्चुअली माई की जो कहानी है, हमने जो भी पढ़ा, वी फाउंड आउट कि 2015 में आपने 10 दिन का ब्रेक लिया था और उस वक्त आपने स्टोरी लिखी थी, और इतने वक्त से, मतलब हाउ मेनी इयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 5 years इफ वी गो बैक टू व्हेन इट इज when you started making it. Yes. तो तब से लेके अब तक ये जेनेसिस क्या था स्टोरी का, आया कैसे आपको? जेनेसिस यहीं से आया था, जो मैंने आपको कहा कि ये जो 2 दुनिया साथ में रहती हैं, मतलब अच्छाई और बुराई जो को एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी एक कहानी कहने का मन था और बहुत ही पर्सनल तरीके से कि एक रिलेटेबल कैरेक्टर को लेके। तो दैट्स वाई मैंने सोचा मेरी मम्मी जितनी स्वीट हैं, जितनी जैसे इंडियन मदर्स होती हैं, आई थिंक 90% ऑफ इंडियन मदर्स आर लाइक दैट, जो सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी होती है, अपने बारे में नहीं सोचती, सारी फैमिली की ग्लू होती हैं, दे वांट एवरीबॉडी टू बी टुगेदर। तो वो वाले ट्रेट्स लेके आप उनको एक ऐसी दुनिया में अगर डालोगे तो क्या होगा, वहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ था, जेनेसिस वहाँ से आया था। इतने साल आप इस कहानी के साथ बैठे रहे, वो कभी वो बर्निंग डिजायर होता है कि आई हैव दिस स्टोरी जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, बट वो हो नहीं रहा, किसी को बता नहीं रहा, आपके पास है, यू नो यू हैव इट अप योर स्लीव, व्हाट इज दैट लाइक? मुश्किल ही होता है, और ये सिर्फ मैं कोई यूनिक नहीं हूँ, मेरे जितने फिल्म मेकर दोस्त हैं, राइटर दोस्त हैं, सबकी जर्नी ऐसी रहती है। कुछ लोग 15-15 साल से, जैसे जब मैं विक्रमादित्य मोटवानी की लुटेरा में मैं एसोसिएट था उनका, तो जब वो बना रहे थे लुटेरा, तो मैंने स्क्रिप्ट देखी और उसमें मैंने देखा कि वो लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन डेट होती है, स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन डेट। वो स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन डेट 11 साल पुरानी थी हमारे शूट से। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कहानियाँ लेके बैठे हुए हैं और वेट करते हैं कि कब करेक्ट एक्टर आए, करेक्ट प्रोड्यूसर आए, कब सही समय आए, क्योंकि हर कहानी का एक समय होता है। आप उसको समय से पहले नहीं बोल सकते, समय के बाद नहीं बोल सकते, तो आपको थोड़ा लकी होना पड़ता है। आप तो राइट थिंग्स हैव टू वर्क एट द राइट टाइम। तो मुश्किल तो होता ही है, लेकिन ये इज जस्ट द ओनली होप यू हैव इज दैट यू आर नॉट अलोन इन इट, ऑल स्टोरी टेलर्स गो थ्रू दिस जर्नी।
मतलब नाउ आई एम ट्रूली अंडरस्टैंडिंग सब्र का फल मीठा होता है, उसका क्या मतलब होता है, कितना सब्र करना पड़ता है टू फॉर इट टू सी द लाइट ऑफ डे. आई नो आपने एक प्रीवियस इंटरव्यू में कहा कि आपने मॉम नहीं देखी है एंड यू नो यू नॉट अवेयर, बट द फैक्ट इज़ कि ये जो थीम है ऑफ मदर्स अवेंजिंग देयर डॉटर्स हमने काफ़ी बार देखी है, नॉट सिर्फ मॉम में बट मात्र, जागो, जज्बा, कहानी 2, हाल ही में जलसा. आपका कभी आपके या टीम में कभी वो रहा है कि हमें कुछ अलग करना चाहिए या कैसे इसको अलग करें? बिल्कुल, ऑफ कोर्स. सो एक्चुअली बात वही होगी, जब 2015 में लिखा था आइडिया, तब इतनी नहीं थी, तभी आपने लिखा था. तो जब बनाने का समय आता है तो आप यू आर अवेयर कि हाँ ऐसी एक दो कहानियाँ और बोली गई हैं, पर मुझे लगता है कि प्रेमाइस कुछ भी हो, आप उस कहानी को कहते किस तरह से हो, आप उसको दर्शाते किस तरह से हो. और सच बात ये है कि आज तक जितनी कहानियाँ बोली जानी चाहिए थी वो बोली जा चुकी हैं. कोई नई कहानी है नहीं. जो नया बचा है कहने को वो सिर्फ आपका टेक है. तो हर स्टोरी टेलर अपना टेक लेके किसी भी कहानी को बोलता है. सो आई एम होपिंग कि जो हम लोगों ने काम किया है, मेहनत करी है, हम 3 राइटर्स ने और फिर सारी टीम ने आगे जाके अंशे डायरेक्टर सब लोगों ने, तो मैं आई जस्ट होप कि वो जब वो लोग देखें तब उनको लगे कि एक नई कहानी ही देखी और ऐसा नहीं था कि हमने पहले ऐसा सीन दिस बिफोर. आपने अभी अंशाई की बात की, आप दोनों ने मिलकर डायरेक्ट किया है. ये ग्लोबल ट्रेंड रहा है इन टर्म्स ऑफ सीरीज टू हैव मल्टीपल डायरेक्टर्स, बट रियल लाइफ में सेट पे हाउ डज इट प्ले आउट? डू यू टेक मैं ये हिस्सा करूँगा तुम ये हिस्सा करो, होता कैसे है? हाँ, आप एक्चुअली सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखते हैं, क्योंकि डायरेक्टर को हर सीन के लिए और अपने चीज़ों के लिए प्रिपेयर भी करना होता है. तो मतलब प्रोसेस ऐसा होता है, आप एक टेक्निकल रेकी करके एक चीज़ होती है जिसमें आप लोकेशन पे जाके एक ही चीज़ डिसाइड करते हैं कि लाइट कहाँ लगेगी, भाई कैमरा कहाँ लगेगा, कैसे शूट करेंगे, प्रोडक्शन वाले अपनी गाड़ी कहाँ लगाएंगे, सब चीज़ों का डिस्कशन होता है. तो ये चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है कि कौन क्या शूट करेगा, ताकि उस हिसाब से फिर प्रेप हो, सब हो. तो आप पहले से डिसाइड करते हैं. और ये ट्रेंड आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एकदम नया है. जैसे मैं शो रनर हूँ और डायरेक्टर हूँ और अंशे हमारे लीड डायरेक्टर हैं. तो जब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो कभी मेरा ओपिनियन स्ट्रांग होता है, कभी उनका ओपिनियन स्ट्रांग होता है, और कई बार हम डिसएग्री करेंगे. पर इवेंचुअली अच्छी बात यह है कि वो भी बेस्ट माई के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, मैं भी माई के लिए बेस्ट करना चाहता हूँ. तो कभी मुझे एक कदम पीछे आना पड़ेगा, तो कभी उनको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा. एज लॉन्ग एज जो 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं उनकी ईगो ना हो और वो भी चाहते हैं कि जो आप बना रहे हैं वो बेस्ट बने, जब तक ये प्रिंसिपल रहता है ना, फिर वो इतना ट्रबल नहीं करता. तो ये ज़रूरी है. तो आई एम होपिंग, एंड ऑल्सो आई थिंक समवेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज कि भाई अंशे की क्या स्ट्रेंथ्स है एंड अंशे हैज़ टू रिकग्नाइज कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है. तो अगर हम दोनों अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज करके साथ में काम करें तो तब ये पॉसिबल है, नहीं तो एक्चुअली मुश्किल है. और मैं बहुत ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जहाँ पे मुश्किलें आती हैं, जहाँ पे 2 लोग डायरेक्ट करें. आसान नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर को तो डायरेक्टर बनना है ना. तो आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है. पर अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, अपने शो के बारे में सोचें और उसको पहली तवज्जो दें तो सब ठीक होता है. एंड इट्स ओनली फेयर, इतने साल जब आपने मेहनत की है, इतने साल से आप वेट कर रहे हो, तो जब वो मोमेंट कम्स एंड देन यू से कि अच्छा ये शेयर करना है, कभी वियर्ड होता है? यस, इट वाज डिफिकल्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. जब पहली बार हुआ कि 2 डायरेक्टर करेंगे तो मेरे को लगा नहीं यार मुझे सारा डायरेक्ट करना है, मैं इतने साल से वेट कर रहा हूँ. मैं बाकी 11 साल से वेट कर रहा था डायरेक्ट करने के लिए, पिच कर रहा था. तो होता है, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा ये बात. लेकिन सच बात ये कि अब जब वो शो बन चुका है और सब सारा काम हो चुका है, अगर ये सिर्फ मैंने किया होता तो इतना अच्छा नहीं बनता. और ये अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है. एंड ऐसा नहीं कि मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि शोज़ में काम ही इतना होता है कि एक आदमी कर ही नहीं सकता वो. एंड दैट्स वाई शोज़ आर मोर कोलैबोरेटिव दैन फिल्म्स. यू नो, इन अ शो यू हैव डिफरेंट पीपल हैव टू कम टुगेदर टू मेक इट हैपन. तो वो आपको ये जानना मानना बहुत ज़रूरी है कि जब टीम अच्छी होती है, जब लोग मिलके कुछ बनाते हैं, तभी अच्छा बनेगा शोज़ में. आपकी रेप्यूटेशन रही है एक्टिंग कोच के तौर पर, तो कभी आपने वर्कशॉप्स इतने आपने किए? आई शुड टेल यू, 20 साल से इंडस्ट्री में है, ही इज़ वर्क विद द बिगेस्ट नेम्स, यू नेम इट, एंड ही इज़ डन एन एक्टिंग वर्कशॉप विद देम. तो आपने अपने सेट पे माई के लिए अपने एक्टर्स के साथ वर्कशॉप की? जी की. करना ही था. बिल्कुल, आप काम करते हैं सब एक्टर्स के साथ, मतलब हर डायरेक्टर भी अपने एक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ काम तो करते हैं. तो हम लोग ने भी काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह की हैं, डिस्कशंस किए हैं, एक्सप्लोर किया है कैरेक्टर को. बट आप हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे सब दर्शकों के लिए प्लीज़ समझाएं कि कैसे होता है एक्टिंग वर्कशॉप में, क्या होता है, स्पेस क्या होती है? एक्टिंग वर्कशॉप एक्चुअली हर इंसान का अलग तरीका होता है करने का. आई मीन जिस तरह से हम लोग करते हैं या मैं करता हूँ, उसमें ज़्यादातर हम
अनलर्निंग पे काम करते हैं। अनलर्निंग से मेरा मतलब कि हम लोग ना हमारा थोड़ा हिंदी इंडस्ट्री का जो एक कल्चर है हर चीज़ लाउड करने का या ज़्यादा हिस्ट्रियोनिकल करने का, और ये हमारे थिएटर कल्चर से भी आता है, हमारे सिंगिंग एंड डांसिंग कल्चर से ये चीज़ें बहुत सालों से चलती आ रही हैं। लेकिन आई थिंक तो कई बार ना एक्टर्स को थोड़ा वो चीज़ भुलानी पड़ती है, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ लर्निंग इज़ अबाउट अनलर्निंग, तो एक वो काम होता है। दूसरा एक हम वी ऑल्सो यूज़ मेडिटेशन अ लॉट, एंड इट्स अमेजिंग हाउ मेडिटेशन कैन हेल्प पीपल कनेक्ट विद देमसेल्व्स एंड बिकम बेटर एक्टर्स। और एक जो चीज़ हम करते हैं कि जो एक्टर का काम है, देखिए अगर एक वायलिनिस्ट है और अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो देखभाल करेंगे ना उस वायलिन की कि भाई उसकी तारें ठीक हैं कि नहीं, मतलब आवाज़ जो आ रही सही आ रही है कि नहीं। तो उसी तरह एक्टर का जो टूल है वो उसका अपना सेल्फ है, मतलब अपना शरीर, आपका दिमाग, जिस तरह आप सोचते हो और जिस तरह आप इमोट करते हो, जो आप फील करते हो, तो आप उस सेल्फ पे काम करते हैं ताकि वो जो सेल्फ है आपका और ब्रॉडन हो और ओपन हो और अवेयरनेस हो कि आप हैं कौन। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता आप कौन है तो आप कोई और कैरेक्टर कैसे प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। काफ़ी प्रोफाउंड। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी? ये पैशन वाज दिस समथिंग कि बचपन से था आपका इंटरेस्ट? क्योंकि एट अ वेरी यंग एज आपने बैरी जॉन के साथ काम किया उनके इंस्टीट्यूट में, एंड देन आप खुद कोच करने लगे, बट यू नीड टू हैव अ सर्टेन prowess ओवर योर सब्जेक्ट ना, टू देन बी एबल टू कोच समवन एल्स। तो कैसे हुआ? नहीं, बैरी जॉन के साथ ही मेरी शुरुआत हुई। जब मैं 19 साल का था तो मैंने उनके साथ एक एक्टिंग कोर्स किया था, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी बैरी के साथ जर्नी शुरू हुई। क्योंकि अगर आप सही जगह पे जर्नी शुरू करते हो तो आप आगे सही जाते हो, क्योंकि बहुत लोग आपको गलत चीज़ें भी सिखा सकते हैं, और अगर आप गलत सीख जाएंगे तो पता नहीं आप उससे कब उभरेंगे, कब आप वापस रास्ते पे आएंगे। तो आई एम वेरी ग्लैड कि बैरी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। उनसे मैंने बेसिक्स ऑफ व्हाट इज़ का गुड एक्टिंग वो सीखा, और फिर तो बहुत मेरी सीख वहाँ से आई है। बाकी क्या होता है कि जब आप खुद वर्कशॉप कर रहे होते हैं या आप किसी को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहला स्टूडेंट उस वर्कशॉप का मैं होता हूँ। क्योंकि जितना मैं अपने स्टूडेंट से या एक्टर्स से सीखता हूँ, और क्योंकि मैं ये लगातार करता रहता हूँ, तो आप होप करते हो कि हर वर्कशॉप से आपको कुछ नया सीखने को मिले, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या बेटर करना चाहिए, आपको सीखने को मिले, ताकि विद एवरी वर्कशॉप यू आर गेटिंग बेटर। आपका प्लान क्या था? डिड यू थिंक कि मैं ये एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद एक्टर बनना है, कि आपने सोचा कि नहीं कोच बन सकते तो मुझे वो परस्यू करना है? नहीं, शुरू तो एक्टिंग से ही होता है, बिकॉज सबका एक्चुअली जब हम यंग होते हैं और उस टाइम पे ना इतनी अवेयरनेस, जैसे नाउ डेज आई सी यंगस्टर्स एंड इट्स अमेजिंग, लाइक 18-year-old सेइंग आई एम वेरी श्योर आई वांट टू बी अ डायरेक्टर, लाइक नाउ आई सी दिस ट्रेंड अ लॉट। बट मेरे समय में, मतलब आई एम टॉकिंग 20 years बैक, 20 साल पहले ना सोशल मीडिया था ना इंटरनेट भी, मतलब शुरू ही हो रहा था, तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि अच्छा ये फील्ड्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आप शुरू में हाँ, तो आप शुरुआत आपकी वैसी होती है कि हाँ मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, पर जब आप एक्टिंग करते हैं, फिर जब मैंने टीचिंग शुरू की तो साथ साथ डायरेक्शन भी शुरू कर दी ऑफ प्लेज, तो वो उस डायरेक्शन से समझ में आया कि एक्चुअली मुझे तो पीछे रह के एक्टर को बताने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बल्कि कि कोई और मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। Nice. And then you decided कि मैं और भी बताऊंगा क्या करना चाहिए, मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ। Directors are very control freaks and this is one thing that they all have to work on, including me. हमको कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है। You attest to this Personal life fact? or only professional life? I don't know. You say. Did you feel that? No, No, they you give didn't us a feel- lot of space that way. That's lovely. तो आपने सोचा कि एक्टिंग सीखने के बाद दैट आई वांट टू बी अ कोच, पर आपकी इनिशियल जर्नी के बारे में बताया, व्हिच वर दोस फिल्म्स व्हिच सॉर्ट ऑफ सीमेंटेड एन एक्टिंग कोच का टाइटल फॉर यू? एक्चुअली मेरे इन्फ्लुएंसेस थोड़े इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स हैं। मुझे एक्चुअली फिल्में डायरेक्ट करने का मेन जो मेरा एकदम अंदर से जागा कि भाई मेरे तो लाइफ में यही करना है, वो 25 साल की उम्र में हुआ था। और वो तब हुआ था जब मैंने कुछ वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया था। तो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जैसे इंगमार बर्गमन हैं स्वीडन के, या कुरोसावा हैं जापान के, या आंद्रे तरकोव्स्की हैं रशिया के, या कीस्लॉव्स्की हैं पोलैंड के, और सत्यजीत रे बंगाल के, इंडिया के। ये इन फिल्म मेकर्स की फिल्में देख के मुझे समझ में आया कि अरे फिल्में ऐसी भी कही जा सकती हैं, ऐसे भी बताई जा सकती हैं, और वो मुझे बहुत एक्साइट किया था। तो वहाँ से मेरा इंस्पिरेशन इन लोगों से शुरू हुआ था।
मैं इनके करीब बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे बहुत समय लगेगा कुछ भी उनके जैसा करने का, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड इंटेलेक्चुअल। मेरा ऑनेस्टली इन्हीं लोगों से कनेक्शन हुआ था, तो जर्नी तो मेरी यहीं से शुरू हुई है। मैं जैसे आपने कहा ये एक अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है कि आई स्टिल हैव सो मच टू लर्न एंड अ लॉन्ग वे टू गो। मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा आपको ट्रिविल लगेगा शायद, बट आपने इतने स्टार्स के साथ काम किया है और स्टार्स के होते हैं कभी टेंट्रम्स, तो आपने झेला है कभी किसी को ऐसे सीधा किया है कि हेलो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा? Luckily, actually no, I've been very lucky with 99% of the people. एक बार वो समझ जाते हैं ना कि आप काम क्या कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी भूख है बेटर होने की। और मैं ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो 2000 के बाद से या 2005 के बाद से जो एक्टर्स आने शुरू हुए हैं वो बहुत अलग हैं पहले के एक्टर्स से। आई थिंक उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली इट्स नॉट माई ऑब्जर्वेशन, मैनी पीपल नो दिस, कि एक टाइम था जब आप स्टार को ना सिर्फ जब फिल्म आती थी तब देखते थे, तो उनका एक एनिग्मा रहता था। अभी क्या है कि आप उस स्टार को हर दिन देखते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी इंटरव्यू में, कहीं पर, तो एनिग्मा चला गया। तो अभी ना स्टार नहीं रह गया, वो उसको एक्टर बनना ही पड़ेगा। और आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टर्स रिकग्नाइज दिस एंड रियलाइज दिस कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो पीछे 4 लोग खड़े हैं आपकी जगह लेने के लिए, तो वो भी बेहतर बनना चाहते हैं, वो भी अच्छा काम करना चाहते हैं। तो मैंने तो जितने लोगों के साथ काम किया है, ऑल द बिग स्टार्स, वेदर दे आर एक्टर्स और बिग स्टार्स, उन सब में इक्वल भूख है, चाहे आप एक्टर हैं चाहे आप स्टार हैं, सब में इक्वल भूख है बेटर करने की। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टार हैं जो जिनको हम सिर्फ एक्टर बोलते हैं, उनसे भी 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। हाँ, वो एक दो लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो नहीं करना चाहते, बट दैट्स ह्यूमन नेचर, यू नो, आई डोंट थिंक इट्स गॉट एनीथिंग टू विद देयर स्टारडम। यू नो, आपने जो अभी कहा, एज एन ऑडियंस, एज समबडी हु कंज्यूम सिनेमा, इट्स रियली गुड न्यूज़ कि उनमें वो भूख है कि वो उतना मेहनत करना चाहते हैं। फॉर ऑडियंस दैट्स ग्रेट टू हियर। आपका प्रोसेस और अप्रोच क्या होता है? आप कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हो, आप एक्टिंग वर्कशॉप्स करते हो, कोच करते हो, तो आपका प्रोसेस क्या होता है व्हेन यू वर्किंग विद एन एक्टर? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। देखिए, एक स्क्रिप्ट होती है, एक डायरेक्टर होता है और एक एक्टर होता है और कैरेक्टर होता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, आपका काम है पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ के समझना कि ये कहानी है किस बारे में, वो कहना क्या चाहती है। तो एक आप पहला समझते हो कि कहानी क्या है और कैरेक्टर क्या है, एक आप अपनी समझ से समझते हो। फिर आप डायरेक्टर से पूछते हो, भाई आपका कुछ टेक है इस पर, मेरे को ये समझ में आया। तो या तो डायरेक्टर बोलेगा हाँ भाई जो तुमने बोला एग्जैक्टली वही है, या वो बोलेगा हाँ जो तुम बोल रहे हो वो भी है पर ये भी है, अच्छा ये भी है, तो फिर आप उसको भी समझते हो। फिर आप एक्टर से मिलते हैं, फिर आप देखते हैं कि एक्टर और किरदार में कितना अंतर है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपकी कास्टिंग होती है, आप कुछ ना कुछ किरदार के आसपास ही होते हैं। तो सिनेमा इज़ नॉट लाइक थिएटर में आप इफ़ यू आर 25 यू कैन प्ले 80, बट इन सिनेमा लार्जली इफ़ यू आर 25 यू विल प्ले 20 to 30, यू विल नॉट प्ले 60, 90%, 99% ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक दैट। तो बहुत बार सिनेमा में कास्टिंग हमेशा ऐसी ही होती है कि आप कैरेक्टर के ऑलरेडी करीब होते हैं। तो जहाँ पे आप करीब नहीं हैं, मेरा काम है कि कैसे एक्टर और कैरेक्टर को सेम पेज पे लाया जाए। कभी कभी तो मैं डायरेक्टर से ये भी बोलता हूँ कि आप भी थोड़ा ओपन रहिए। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि एक्टर को ही कैरेक्टर के पास जाना पड़े, कभी कभी कैरेक्टर को भी एक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर को एक्टर के पास आने देंगे तब वो कैरेक्टर और बेटर हो जाएगा, क्योंकि इस एक्टर के कुछ ट्रेट्स हैं जो बहुत वर्क कर सकते हैं इस कैरेक्टर के लिए। तो आप दोनों तरफ से काम करते हैं, कभी आप एक्टर को पुश करते हैं, कभी आप डायरेक्टर को पुश करते हैं। तो ये सब चीज़ों का मिश्रण से आप कुछ डिज़ाइन करते हैं वर्कशॉप और इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है। आई एम ट्राइंग टू इमेजिन ऑल ऑफ इट, इट्स ब्यूटीफुल। मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आप एक नाम मुझे बताएं, कोई ऐसे एक्टर जिसकी एक्टिंग मेक्स यू सिट अप एंड टेक नोटिस, बिकॉज आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आप सर्टेन चीज़ें देखते हो जो हम ऑडियंस की तरफ मिस कर दे शायद। आई थिंक करंटली आई एम मोस्ट एक्साइटेड बाय आलिया भट्ट। आई थिंक शी इज़ फैबुलस एंड फैबुलस अक्रॉस विद अ मेल और फीमेल। You worked with her. Yes. आपने उनके साथ एक्टिंग वर्कशॉप्स गली बॉय में काम किया था मैं उनके साथ। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक तो आप सिनेमा में देखते हैं कि एक्टर कैसे काम कर रहा है, बट सिनेमा एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि कई बार एवरेज एक्टर्स को भी आप बहुत अच्छा दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास इतने टूल्स होते हैं, आप अलग अलग टेक्स यूज़ कर सकते हो, आप म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हो, तो एवरेज एक्टर भी बहुत अच्छा लग सकता है। लेकिन जिस एक्टर के साथ आपने सामने बैठ के काम किया है, आपको उनका टैलेंट एकदम अनफिल्टर्ड नज़र आता है, रॉ स्टेट। बिल्कुल। तो जब मैं, जोया और आलिया हम कर रहे थे गली बॉय में काम, तो कुछ मैंने उनको इम्प्रोवाइजेशंस हम लोग ने दी मैंने उनको, और मेरे एक असिस्टेंट थे जो उनके साथ एक्ट कर रहे थे।
तो उन्होंने किया और बहुत अच्छा किया, पर उसके बाद उनको एक ब्रीफ दी गई। वो ब्रीफ उन्होंने सुन के उन्होंने 15 सेकंड लिए, फिर आधा मिनट उन्होंने कुछ तो अंदर गई, कुछ बिना हिले, फिर उन्होंने कहा रेडी। और उसके बाद जो उन्होंने किया, तो मैं और जोया बस एक दूसरे को देखते रह गए, हम कुछ बोल नहीं पाए। तो कुछ एक्टर्स में ना वो कैपेबिलिटी होती है कि जब आप उन्हें डायरेक्शन दें, वो उसको कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे अपने अंदर उतारते हैं और फिर उसको उसकी डिलीवरी भी करते हैं। तो जब आप ये चीज़ें नोटिस करते हैं, आई एम नॉट सेइंग आलिया इज द ओनली वन, देयर आर मेनी गुड एक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद, बट करंटली आई थिंक मे बी शी इज माय फेवरेट। या Every time she's on screen, you sit up and you take notice. या ओके, मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने इनसे पूछा कि जैसे एक्टिंग आपने सीखी, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, यू नो, फ्रॉम द लाइनेज दैट यू कम फ्रॉम योर ग्रैंड मदर एंड मदर, एंड जस्ट आपने सीखी फ्रॉम अ चाइल्डहुड ऑब्जर्विंग देम कि अलग से? No, by the time I decided to be an actress, my grandmother too had retired. My mother also, I think, she had joined movies after we both were born. So I think by the time we decided, even my mother, I think, kind of stopped acting. But I didn't get a chance to learn it because I was in class 11 and I did my first film, Godmother. So there was no, at that point, I think there was very less workshops, and when I started, it was not like this. So for me, I just had to learn on the job. So I just got lucky with a lot of very good directors, and I learned while filming. आपको लगता है बचपन से नोटिस उनको ऑब्जर्व करते करते आपने बहुत कुछ सीखा होगा? इट्स जस्ट प्योरली डाउन टू No, just DNA. looking at my mother when she was going for shooting, Riya and me were like, no, we want to be actresses. We want to be actresses. But we only saw the outside and the glamour and the lights. We didn't know how much hard work it actually is. So till I did my first film, I didn't realize. So everyone wants to be an actor, and you come from this family, so it's also understood that you're going to be an actor. या So that pressure and expectation is there. When I did my first initial 2-3 films, they're like, oh, Suchitra Sen's granddaughter and she should know and she should. But you don't know. I mean, like But now the pressure is off. एक्चुअली ये जो कह रही है बहुत सही बात है कि जब हम बाहर से देखते हैं फिल्मों को या बॉलीवुड को, तो हम सोचते हैं वाह वाह क्या मज़ेदार, पर जितना मेहनत एक फिल्म बनाने में जाता है और एक्टर्स जितनी मेहनत करते हैं, जैसे आज ही सुबह में आई थिंक रामचरण जी का ट्वीट था शायद कि ये सक्सेस तो है, पर उसके लिए रोज़ सुबह 5 बजे उठ के मेरे को काम करना पड़ता है। तो और वो पूरा दिन काम करते हैं, तो सब लोग उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, सब लोग। तो वो हार्ड वर्क पर मज़ा भी आता है एक्चुअली। द गुड थिंग इज के व्हेन यू लव इट तो वो काम नहीं लगता, ये अच्छी बात है। तो आप जब रोल्स पिक कर रहे थे थ्रू योर एंटायर करियर का स्पैन, कभी ऐसे लगा बिकॉज ऑफ द फैमिली दैट यू कम फ्रॉम, यू need to pick a certain roles or do certain things? I understand your mom said ki certain roles of yours that your dad did not like. Mirch, she mentioned, and she said that we would cover our eyes. He's my father, in fact. I took him to watch Mirch, and because of the bold scenes, he didn't talk to me for 3 days. So they're like that, but now they're more relaxed. So they've never put pressure on me, and they've never decided what I have to do. I decided, and nothing like that. I think whatever, I just go by my instinct. If I want to do something, I don't want to do something. But tell me, अपनी mom की कोई favorite role आपको pick करना होता या Mom. one of hers, and she for you as well, which has been her favorite role? Yeah, she's come and told you कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा. I think you really talked yourself. So my mother's maybe one Bengali film called Tumi Koto Shundor. That's one of her. I saw it when I was a kid, and I think that just caught my attention. And for her, me, I think Chokir Bali, I think so far. Okay. And anything you want to share with me about My 15 को आ रही है, सीरीज है, नेटफ्लिक्स पर आ रही है, एंड इट इज़ जैसे हमने डिस्कस किया, एक माँ है जो अपनी बेटी, मैं और नहीं बताऊंगी आपको, बस वो अवेंज कर रही है, उसके आगे क्या अवेंज कर रही है, कैसे कर रही है, क्या हो रहा है, इन्होंने बता दिया। 3 अलग वर्ल्ड्स जब कोलाइड होती है क्या होता है, you have to watch for all of that. But anything you want to share with our viewers signing off? No, just watch it, and I'm sure you love it. We won't let you down, but watch it on the 15th of April. Yeah. तो माई 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे आ रही है दोपहर 12 बजे। तो आप सब लोग ने बहुत प्यार दिया है ट्रेलर को, एंड हम यही होप करते हैं कि जब आप शो देखेंगे तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, एंड यू विल रियली लाइक इट। सो प्लीज़ वॉच 15th April माई ऑन नेटफ्लिक्स।